8. My dear students, I am going to teach all of you your next lesson, lesson number 3, the drought. Drought, DROUGHT. Drought means सूखा. Lesson 3, drought. Parched means झुलसा हुआ. झुलसा हुआ. क्यूट. क्यूट माने होता है बिल्कुल. स्क्रोचिंग, SCORCHING. तिल मिलाना. या अत्यधिक. ऑर्डर. ऑर्डर में चारा. डिस्ट्रॉय, नष्ट करना. रिड्यूस, घटाना. स्केलेटन, ढांचा. इंक्लूडिंग, साथ साथ. अच्छा, अब लेसन देखिए. Look at the picture of dried parched land. यह सूखा हुआ जमीन की तस्वीर को देखो. It is the picture of the drought affected area of Rajasthan. यह राजस्थान के सूखा से प्रभावित तस्वीर है. During drought, there is a acute shortage of water, greenery, fodder, and crops. During droughts, सूखे के दौरान फसलों, चारों, हरियाली और पानी की बिल्कुल कमी है. सूखे के दौरान फसलों, चारों, हरियाली और पानी की बिल्कुल कमी है. शॉर्टेज मीन्स कमी. The earth seems to be groaning under the scorching heat of the sun. Groaning. Groaning means कराहना. Groaning. Groaning means कराहना. Groaning means कराहना.
The earth seems to be groaning under the scorching heat of the sun. पृथ्वी सूरज के चिलमिलाती धूप के नीचे कराहती हुई प्रतीत होती है. The ponds, lakes, rivers, wells, and other sources of water all dry up due to heat. तालाबें, झीलें, नदियाँ, कुएं और पानी के अन्य स्रोत गर्मी के चलते सब सूखे हैं. The standing crops in the field are destroyed. खेत में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं. The animals begin to die for want of fodder. जानवर चारा के अभाव में मरना शुरू कर दिए. The farmers are wandering with their cattle in search of water. किसान लोग पानी की खोज में अपने मवेशियों के साथ इधर उधर भटक रहे हैं. वॉन्डरिंग, भटकना. The animals have been reduced to a skeleton. The animals have been reduced to a skeleton. जानवर के कंकाल ढांचा घट चुके हैं. Everybody, including man and animal, is restless for rain. सभी कोई, जिसमें आदमी और साथ ही साथ जानवर जुड़े हैं, पानी के लिए बेचैन हैं. So that they may get some relief from unbearable heat. ताकि वे लोग असहनीय गर्मी से कुछ राहत पा सकें. अनबियरेबल, जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जा सके. Unbearable. असहनीय. The drought lasted for a month. यह सूखा 1 महीना तक चला. Every day the farmer would anxiously look at the sky. प्रतिदिन किसान चिंतापूर्वक आकाश को देखते थे. Anxiously, चिंतापूर्वक. चिंतापूर्वक. Anxiously looked at the sky to notice a small piece of cloud. देखने के लिए बादल के एक छोटे से टुकड़े को. When they do not find cloud in the sky, जब वे लोग आकाश में बादल नहीं पाते थे, they are filled with great sorrow. तो वे बहुत दुख से भर जाते थे.
we find a clear expression of this feeling of sadness on their faces. हम लोग पाते थे या पाते हैं एक स्पष्ट भाव उदासी का उन लोगों के चेहरा पर। हम लोग उन लोगों के चेहरा पर उदासी का एक स्पष्ट भाव पाते हैं। Their crops had not been gathered in and are slowly shriveling up in the field. Their crops had not been gathered. उन लोगों का फसल इकट्ठा नहीं हुआ और धीरे धीरे खेत में ही श्रिवलिंग हो रहा था। They are worried as their cattle are dying because they are getting neither food nor water. वे लोग चिंतित थे बिकॉज उन लोगों के पास जानवरों के लिए न तो पानी था और न ही चारा। The villagers in their quest for water, गांववासी अपने पानी की खोज में are making triple attempts. ट्रिपल मीन्स होता है तुच्छ, TRIFFLE, ट्रिपल माने तुच्छ। Triple attempts to get water by digging the ground here and there. लोग इधर उधर तुच्छ प्रयास करते थे गड्ढा खोद करके पानी के लिए। But unfortunately, underground water level too had fallen. लेकिन दुर्भाग्य से पानी का सतह बहुत नीचे चला गया था। There was only one tank in the village. गांव में सिर्फ एक तालाब था। From which they were supplied water, जो कि पानी का आपूर्ति करता था for their need, उन लोगों की आवश्यकता के लिए। Soon the villagers were informed that it was going to be more difficult for them to get water. शीघ्र ही गांववासी को यह सूचित किया गया कि पानी पाने के लिए और कठिनाई होने जा रहा है। As the supply was running low day by day, चूँकि पानी की आपूर्ति दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कुछ क्वेश्चन दो चार को नोट किया जाए। What is the condition of the drought affected area of Rajasthan? What happens
to the standing crops. Why are the farmers wandering? When did they feel with great sorrow? They feel with great sorrow. What information was given to the villager one day? 5 questions. However, Chandvir, one of the landlords of the village, फिर भी चंद्रवीर जो कि गांव का स्वामी था, हैड ए बिग टैंक। फिर भी चंद्रवीर नाम का एक व्यक्ति जो कि गांव का लैंडलॉर्ड था, गांव का स्वामी था, मालिक था, भूपति था, उसके पास में एक बहुत बड़ा तालाब था। बट ही हैड रिफ्यूज्ड टू लेट द विलेजर्स टेक वाटर फ्रॉम इट। लेकिन उसने इससे पानी लेने के लिए गांव वालों को मना कर दिया। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड फॉर इट। गांव वालों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया। दे ऑफर्ड हिम ए बिग अमाउंट फॉर इट। उन लोगों ने इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया। सम ऑफ देम resorted to force, but he was adamant in his decision. Some of them resorted to force. कुछ लोगों ने उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग था। He did not agree with them. वह उन लोगों से सहमत नहीं हुआ। At last, being fed up with the persistent demands of the villager, अंत में गांववासी के लगातार मांग से उब करके he put a condition before them. वह उन लोगों के सामने एक शर्त रखा। He said that he was ready to buy their cattle for a price which was ridiculously low. वह बोला कि वह तैयार है उन लोगों का मवेशी खरीदने के लिए। He was ready to buy their cattle for a price
उस कीमत पर which was ridiculously low, जो कि बिल्कुल कम कीमत हो, हास्यपद ढंग से कम। तो एक क्वेश्चन और टाइप कर सकते हैं आप लोग, हु वाज चंद्रवीर, हु वाज चंद्रवीर, चंद्रवीर। ठीक है, अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।